guys, welcome to this channel Think World. Today we will discuss nearest equation. आज हम डिस्कस करेंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है nearest equation. And friends, I'm telling you, you don't know the importance of this equation, and many students left numericals that come in exam on that topic due to lack of tuition practice. I will cover topic wise concept with questions because ultimately जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा that is only questions. सबसे आज के टाइम पे सबसे बड़ी गलती सभी स्टूडेंट्स एक ही करते हैं, वो क्या है, हम थ्योरी को तो कर लेते हैं बट वी कैन नॉट एबल टू डू न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हम थ्योरी में इतना टाइम लग जाता है हमें कि उसकी वजह से हमें क्वेश्चंस करने का तो मौका मिलता ही नहीं इसके लिए। और आज के टाइम पे एक चीज़ हम टेलिंग यू माय डियर डेट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम बिकॉज एवरीथिंग इज़ बिजी and at present so much long duration videos are available in different social media platforms, but the students of present generation are not able to look on those videos. They find simple shortcuts. So my aim to build this channel to understand in detail with tricks and tips and very important topics of NEET, JEE, the students who are preparing for these competitive exams so they can compete. So let's start. nearest equation हमारा एक टॉपिक है जो कि हमारे कौन से चैप्टर के अंदर आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है. ओके, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक हमें बेसिक सी बातें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नथिंग, इट टेल्स रिलेशन बिटवीन relation between electrical energy and chemical energy. यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री की जो डील करती है किसके साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में. अंडरस्टूड है? तो हम अपने मेन टॉपिक की बात करने हैं, दैट इज़ नियरेस्ट इक्वेशन. माय डियर, जो हमारी नियरेस्ट इक्वेशन होती है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. मीन्स जब कभी भी यू कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो एंड इन योर लोकल लैंग्वेज. जब कभी भी वेन एवर और इलेक्ट्रोलाइट whenever our electrolyte is another than 1 molar, then at that on that case we apply nearest equation. At the repeating again, when in reaction either that is anodic or cathodic, our electrolyte is other than 1 molar, at that condition we apply nearest equation. Okay, so let's start. Okay, what is the now questions come, is there any formula? Yes, there is a formula to calculate. Actually, before
The questions comes, what happen in standard condition? In standard condition, we find different cells. What electrode potential at standard condition? But in the case of, but in the case of, but in the case of non standard, we find हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे हम क्या फाइंड करेंगे उस केस में? नेरेस्ट इक्वेशन की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे हम? ई सेल निकालेंगे, ई सेल निकालेंगे। और अगर इफ़ हमारा केस होता है तो स्टैंडर्ड, उस केस में हम क्या निकालने थे? उस केस में हम क्या निकालते थे? देन वी फाइंड ई नोट सेल। हम उस केस में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे। बट नाउ वी विल फाइंड आउट ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, so let's start. Right, what is the formula of E cell? E cell. Okay, our formula of nearest equation to find, sorry for mistake, that is E cell, not standard condition. That is E naught cell minus 0.0591 by n log sorry guys, due to less space at after that log it came QC. This is the formula of our, I will try to write in short. Just look, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by n log QC. Okay, I will solve this nearest equation questions using this formula. Okay, and I will tell you the value of how to find QC, log, E naught cell in the question, because I'm telling you again that ultimately हमें एग्जाम में क्या करना होगा? क्वेश्चन ही सोल्व करने होंगे। आवर एम इज़ टू सोल्व क्वेश्चंस। हम व्हेन वी अंडरस्टैंड प्रॉपरली, इफ अगर आई एम माय डियर, अगर मैं आपको भी बता दूंगा क्यूसी कैसे निकालते हैं, ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, तो उसका in my opinion there is no profit, because that is applicable when you will solve questions. So let's start from the question. Take an example. So our first question is okay. Take an example. Okay. We have given a reaction Cu2 plus Fe, product side Fe plus 2. Okay, and we have to given the value of SRP, of
प्लस 0.34 वोल्ट एंड ई नोट Fe2 प्लस Fe minus 0.44 volt. Okay, this is what we have to given a reaction SRP of copper means हमें बेसिकली हमें क्या गिवन हुआ क्वेश्चन, एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन होगी जो कि हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, एंड मैं आपको साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता जाऊँगा जो कि मैनी स्टूडेंट्स दे डोंट नो, इवन दे गो इन बिगेस्ट कोचिंग्स बट दे नो, बिकॉज जो ये पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, ये ही हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही हमारा सारी चीज़ें बनी होती हैं. फॉर टेक एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, आप इफ़ यू आर एट 11th or 12th class, definitely are looking at this video at the age of 17-16. You may notice in mathematics we are using multiplications, numbers, divisions, and you can see the difference between the syllabus using that same words, same digits, same alphabet, you can say signs, what we have doing day by day. Understood? Okay, focus on your question. Okay, what we find out in this question, we have to find out on this question E naught cell, sorry, E cell, firstly, and we have know the formula of E cell. Okay, so firstly after looking the redox reaction, हमारा सेकंड स्टेप होगा इसकी रिएक्शन की हमें एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस लिखेंगे. तो उसके लिए हम चलते हैं, लुक, ओके, आप देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हमारे कॉपर आयंस गिवन है हमको, और प्रोडक्ट साइड क्या है, कॉपर है. ठीक है, तो इट मीन्स हमारी कॉपर की क्या हो रखी है, रिडक्शन हो रखी है. रिडक्शन हो रखी है. इट मीन्स राइट लाइक दिस, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर. दिस इज विच रिएक्शन, रिडक्शन हमारी कहाँ होती है, कैथोड पे होती है. कैथोड पे होती है. ड्यू टू दैट दिस रिएक्शन इज कैथोडिक रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, दैट इज टू फाइंड एनोडिक रिएक्शन. भाई ये देखो छोटी सी बात है, कॉपर हमारी कैथोड है, कैथोडिक रिएक्शन हो रही है, कैथोड रिडक्शन हो रखा है, तो बच कौन गया, Fe बच गया, आयरन बच गया, तो उसका हमारी क्या हो रखी है, एनोडिक रिएक्शन. Fe से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, Fe F प्लस आयंस, जितने आयंस उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट. Sorry guys, I have to read this formula. You have to pause the video and write in your notebooks. Okay, now we have to find the value of n. That is, n क्या होता है, हमने जितने भी किसी भी एक रिएक्शन में देखनी होती है, जैसे आप एनोड की रिएक्शन में देख लो या कैथोड की में देख लो, क्या, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. ओके, आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, कॉपर वाले केस में भी और आयरन वाले केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी 2 आ गई. नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, हमारी क्या,
to find out E node cell. E node cell उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि हमें एस आर पी लेना है किसका, कैथोड का, माइनस एस आर पी किसका, एनोड का. ओके, नाउ हमें क्या गिवन था, कैथोड में हमारा कौन है, कॉपर है. कॉपर की 0.34 माइनस 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 एस आर पी ऑफ एनोड. एनोड ओके, एनोड पे कौन है, आयरन है. मैं एनोडिक रिएक्शन में ना हमारी एस आर पी की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस एक माइनस वहाँ पे एक यहाँ पे, तो प्लस हो गया कितना 0.44. ओके ओके, ये हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, ई नोट सेल आ गया हमारा 0.78 वोल्ट. ओके, अब हमें कुछ नहीं करना, नथिंग, but we have to just remember these values and put in our formula. Very simple. Now just look, हमारा फॉर्मूला था ई सेल निकालने का 0.78 माइनस, हमारे फॉर्मूले में था 0.0591. हम हमारी इजनेस के लिए यहाँ ले लेंगे 0.06 बाय एन की वैल्यू 2 है. ठीक है, हमारी एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस जो होंगी, हमारी जो एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस होंगी उनसे हमें लोग क्यू सी की वैल्यू निकालनी है. जो हमारी क्यू सी की वैल्यू आएगी वो कंसंट्रेशन से आएगी. ओके, लेट से हमारी कंसंट्रेशन क्यू सी वैल्यू होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन. ओके, ऊपर क्या हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ठीक है, लेट से हमारा इस क्वेश्चन में हमको गिवन है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी हमें हमारी लॉग क्यू सी की वैल्यू हमारी बाई चांस आ गई इस क्वेश्चन में, कितनी आ गई 0.78 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे हम तो 0.03 आएगा और हमारी वैल्यू आ गई 1 गिवन हमको क्वेश्चन में. ओके, सो व्हाट विल हैपन, 0.78 minus 0.03, then our answer will be 0.75 volt. Okay guys, thank you for today, and if you will comment on which topic you want videos, I will make video on that topic, and I will make your study better, and I will give my 100% for your best. Thank you guys and have a nice day.